السلام علیکم، سچ نیوز کے ساتھ میں ہوں ارسلان کھوکھر اور میں ہوں ماہنور معراج۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، آغاز کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ اے اللہ جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل کے صدقے میں ہمیں ہر طرح کی آفات سے محفوظ رکھ۔ آمین ثم آمین۔ ذکر کرتے ہیں زندہ دلوں کے شہر لاہور کا، جہاں پر پیش آنے والی ایک دلسوز واقعے کا جس سے ہر درد مند کو ہلا کر رکھ دیا۔ لاہور سے گجرانوالہ جانے والی خاتون کو بچوں کے سامنے موٹر وے پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے کر روایت پوری کر دی، پولیس بھی روایتی سستی کا شکار، کیس پر کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ لاہور میں پیش آنے والا دلسوز واقعہ جس نے ہر درد مند کو ہلا کر رکھ دیا۔ لاہور سے گجرانوالہ جانے والی خاتون کو بچوں کے سامنے موٹر وے پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے کر اپنی روایت پوری کی، پولیس بھی روایتی سستی کا شکار ہے، کیس پر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی۔ پنجاب میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال تشویش کا باعث بنتی جا رہی ہے۔ محفوظ تصور کی جانے والی موٹر وے بھی غیر محفوظ ہو چکی ہے۔ پولیس کی کارکردگی تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ اپنے بچوں کے ہمراہ لاہور سے گجرانوالہ جانے والی خاتون کو موٹر وے پر گجرپورہ کے قریب زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ خاتون نے گاڑی کا پیٹرول ختم ہونے پر گاڑی گجرپورہ کے قریب روک دی اور موٹر وے پولیس کو مدد کے لیے بلایا۔ موٹر وے پولیس کا کہنا تھا کہ یہ علاقہ ہماری بیٹ میں شامل نہیں، اس لیے آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ کچھ دیر بعد پولیس تو نہ آئی تو ڈاکو آدھم کے درندہ صفت افراد نے موٹر وے پر کھڑی گاڑی کا شیشہ توڑ کر خاتون اور اس کے بچوں کو نکالا۔ موٹر وے کے گرد لگی جالی کاٹ کر قریبی جھاڑیوں میں لے گئے اور خاتون کو بچوں کے سامنے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ملزمان خاتون سے 1 لاکھ اعلیٰ پنجاب نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے آئی جی سے رپورٹ طلب کر لی اور ملزمان کو جلد قانون کی گرفت میں لانے کا حکم دے دیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ علاقے سے 12 مشتبہ افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ 2 سال میں آنے والے چھٹے نئے آئی جی کے لیے یہ ٹیسٹ کیس ہے، جبکہ سی سی پی او کی کارکردگی بھی کھل کر سامنے آئے گی۔ زندہ دلوں کے شہر لاہور میں بھی اب خواتین محفوظ نہیں۔ ملک میں پے در پے عورتوں اور بچیوں کے اغوا اور زیادتی کے واقعات نے معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ حکمران نوٹس لے کر خانہ پوری کر دیتے ہیں تو پولیس بھی روایتی سستی کا شکار ہے۔ بار بار پولیس سربراہ کی تبدیلی بھی کوئی بڑی تبدیلی نہ لا سکی۔ زندہ دلوں کے شہر لاہور میں بھی اب خواتین محفوظ نہیں۔ ملک میں پے در پے عورتوں اور بچیوں کے اغوا اور زیادتی کے واقعات نے معاشرے کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ حکمران نوٹس لے کر خانہ پوری کر دیتے ہیں تو پولیس بھی روایتی سستی کا شکار ہے۔ بار بار پولیس سربراہ کی تبدیلی بھی کوئی بڑی تبدیلی نہیں لا سکی۔ میں پولیس سربراہ اور افسران کی تبدیلی پر تبدیلی، لیکن کارکردگی صفر۔ مدینے کی ریاست کا دعویٰ کرنے والوں نے خواتین اور بچیوں کو غیر محفوظ کر دیا۔ پولیس بھی تحفظ دینے میں ناکام۔ صوبے میں زیادتی کے پے در پے واقعات، نوٹس پر نوٹس، لیکن عمل درآمد صفر۔ مثالی سمجھی جانے والی موٹر وے پولیس کا تاثر بھی زائل ہونے لگا۔ 1.25 کھرب کا پولیس بجٹ بھی بزدار سرکار کے کسی کام نہ آ سکا۔ وسیم اکرم پلس کے محفوظ پنجاب کے دعوے ہوا ہو گئے۔ پولیس شہریوں کو تحفظ دینے میں ناکام ہو گئی۔ پولیس کے اعداد و شمار نے ہی امن و امان کی صورتحال کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ کراچی میں 5 سال کی بچی مروا سے زیادتی اور قتل کیس کے ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی میں 5 سال کی بچی سے زیادتی اور قتل کیس، مروا قتل کیس میں نامزد ملزم عدالت میں پیش، ملزم 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ کراچی میں 5 سال کی بچی مروا سے زیادتی اور قتل کیس کے ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ کراچی میں 5 سال کی بچی سے زیادتی اور قتل کیس، مروا قتل کیس میں نامزد ملزم عدالت میں پیش ہوا۔ ملزم کو 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ کراچی میں ڈاکٹر مہا کیس کے ملزم جنید اور وقاص کی عبوری ضمانت میں 15 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ ڈاکٹر مہا کیس ملزم اور تفتیشی افسر عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزم جنید اور وقاص کی عبوری ضمانت میں 15 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ کراچی میں ڈاکٹر مہا کیس کے ملزم جنید اور وقاص کی عبوری ضمانت میں 15 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ ڈاکٹر مہا کیس ملزم اور تفتیشی افسر عدالت میں پیش ہوئے۔ ملزم جنید اور وقاص کی عبوری ضمانت میں 15 ستمبر تک توسیع کر دی گئی۔ سپریم
सुप्रीम कोर्ट ने एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस में मुलजिम आदिल जमान की दरख्वास्त जमानत खारिज कर दी। मुलजिम जमानत खारिज होने पर कमरे अदालत से फरार हो गया। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में एंकर मुरीद अब्बास कत्ल केस की समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट ने केस के अहम मुलजिम आदिल जमान की जमानत खारिज कर दी। अदालत ने मुलजिम को दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेजने का हुक्म देते हुए आदिल जमान को जमानत पर रिहा करने का सिंध हाई कोर्ट का हुक्मनामा मुअत्तल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर करते हुए वक्त अहम शवाहिद को नजरअंदाज किया। मुलजिम के खिलाफ 4 गवाह और शवाहिद से साबित होता है कत्ल के वक्त मुलजिम मौजूद था। मुलजिम आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त जमानत खारिज होने पर फरार हो गया। लाहौर के इलाके गुजरपुरा मोटरवे पर खातून से दौरान डकैती ज्यादती करने वाले मुलजिमान ताहाल पुलिस के शिकंजे में ना सके। दूसरी जानिब पुलिस ने जाए वारदात से शवाहिद इकट्ठे कर लिए हैं। मजीद जानेंगे जैन नकवी से। जी जैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुजरपुरा मोटरवे के मुकाम पर खातून से दौरान डकैती ज्यादती करने वाले मुलजिमान ताहाल पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सके। तकरीबन 48 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वाक़े का नोटिस लेकर आईजी पंजाब से जो है वो बाकायदा तौर पर रिपोर्ट भी तलब की है, जबकि दूसरी जानिब आईजी पंजाब की जानिब से जो है वो बाकायदा तौर पर 20 टीमें जो हैं वो तश्कील दे दी गई हैं, जिनकी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही जो है वो डीआईजी इन्वेस्टिगेशन खुद कर रहे हैं। इस वक्त 20 के करीब टीमें जो हैं वो इस वाक़े की तफ्तीश कर रही हैं, जिनमें अगर बात की जाए तो CIA के SP और डिवीजनल SP जो है वो भी फील्ड में मौजूद हैं। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल की अगर बात की जाए तो गुजरपुरा की हदूद में जो है वो पुलिस की जानिब से 12 मुश्तबा अफराद जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, जबकि दूसरी जानिब जाए वक़ुआ से इन्वेस्टिगेशन की टीमों ने बाकायदा तौर पर जाकर शवाहिद इकट्ठे किए हैं। DNA भी मौसूल हुआ है। पुलिस का कहना है कि DNA का जो है वो DNA की मदद से मुलजिमान को तलाश करने में मदद मिलेगी, जबकि जियो फेंसिंग का अमल भी शुरू है। जाए वक़ुआ की अगर बात की जाए तो जाए वक़ुआ के करीब जो CCTV कैमरे थे उनकी फुटेजेस भी हासिल कर ली गई है। पुलिस का कहना है कि फुटेजेस से भी मुलजिमान को पकड़ने में आसानी मिलेगी। इसके अलावा नादरा की डेटाबेस जो है उससे भी रब्ता कर लिया गया है। अभी 12 के करीब मुलजिमान जो हैं वो पुलिस की ज़ेर हिरासत में हैं, लेकिन ताहाल पुलिस के ही पुख्ता नतीजे पे नहीं पहुंची और ना ही कोई पुख्ता शवाहिद ताहाल पुलिस को मौसूल हुए हैं। मुलजिमान की गिरफ्तारी तक जो है वो पुलिस चैन से नहीं बैठेगी, ऐसा कहना था IG पंजाब का, जबकि IG पंजाब का कहना है कि इस वाक़े में जो है मुलविस अफराद के खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब अभी की ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जो इन्वेस्टिगेशन की टीम है वो इस वक्त जाए वक़ुआ पे मौजूद है, वहाँ से शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं, जियो फेंसिंग की जा रही है, जबकि जो रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिमान हैं उस हदूद में गुजरपुरा की हदूद में उन मुलजिमान को भी जो है वो हिरासत में लिया जा रहा है। इस वक्त पुलिस के मुताबिक 12 से ज़ायद मुलजिमान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि IG पंजाब का कहना है कि शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं जिससे मुलजिमान को गिरफ्तार करने में जो है वो मदद मिलेगी। DIG इन्वेस्टिगेशन इस वक्त ख़ुद जो है वो इस तमाम तहकीकात की निगरानी कर रहे हैं, जबकि IG पंजाब इनाम गनी ने वाज़ेह तौर पर हदायत जारी की हैं कि मुलजिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए। और इस हवाले से अगर बात की जाए तो जो मेडिकल रिपोर्ट है उसमें भी खातून के साथ ज़्यादती जो है उसके सबूत मिले हैं। इसके अलावा जो FIR है वो दर्ज की गई है, लेकिन अब मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस के हवाले है, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। जैसे ही पेशरफ्त आएगी तो उसके मुतालिक जो है पुलिस आगाह करती जा रही है। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन पुलिस जाए वक़ुआ पे मौजूद है, वहाँ से जो जियो फेंसिंग है वो की जा रही है, शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया जैन नकवी। लाहौर हाई कोर्ट ने नए IG पंजाब और CCPO की तकर्री के मामले पर वफाकी और पंजाब हुकूमत के वकला को 14 सितंबर तक जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि आप ऐसे अफसर के दिफा में आए हैं जो अदालत में कहता है हर कानून पर अमल नहीं हो सकता। अगर कमांडर ये कहे तो अमन अमान कैसे कायम करेंगे? ऐसा अफसर पुलिस की कमांड कैसे कर सकता है?
आईजी पंजाब के तबादले के खिलाफ दरख्वास्त में हाई कोर्ट ऑफिस के एतराज पर समाअत हुई। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान ने शुएब दस्तगीर के तबादले को चैलेंज किया। हाई कोर्ट ऑफिस ने एतराज आयद करते हुए कहा कि दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं। दरख्वास्त गुजार मलिक अहमद खान का कहना है कि सूबाई असम्बली का मेंबर और मुतासरा फरीक हूँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कहा कि आप ये बात असम्बली में क्यों नहीं करते। आप ऐसे अफसर के दिफा में आए जो अदालत में कहता है हर कानून पर अमल नहीं हो सकता। अगर कमांडर ये कहे तो अमन अमान कैसे कायम करेंगे? ऐसा अफसर पुलिस की कमांड कैसे कर सकता है? सरकारी वकील ने कहा कि ये पुलिस अफसर का तबादला है, दरख्वास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं। अदालत ने वफाकी और सूबाई हुकूमत को दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर पीर को दलाइल देने की हिदायत कर दी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और उनकी बेटी जवेरिया अदालत में पेश हो गईं। सदर मुस्लिम लीग नून का कहना है हुकूमत मुझे और मेरे खानदान को इंतकाम का निशाना बना रही है। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और उनके खानदान के खिलाफ मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनकी बेटी जवेरिया अदालत में पेश हुई। शहबाज शरीफ ने अदालत में ताखीर से पेश होने पर मुआज़रत करते हुए कहा कि रास्ते में बहुत ज्यादा रश था, इसलिए ताखीर हुई, जिस पर जज एहतसाब अदालत ने कहा मुझे इल्म है, मैं भी रश में फंस जाता हूँ। शहबाज शरीफ ने अदालत से कहा कि मैं कुछ कह सकता हूँ, जिस पर जज एहतसाब अदालत से कहा मुझे अंदाजा था आप कुछ कहेंगे, आपको इजाजत है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ ने कहा कि मैंने आमदन से जायद असासे बनाए, मेरे फैसलों से नवाज शरीफ और बेटों को बिजनेस में नुकसान हुआ, मैंने 10 साल पूरी ईमानदारी से खिदमत की। एहतसाब अदालत ने अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और उनकी बेटी को हाजिरी लगाकर वापस जाने की इजाजत दे दी। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स केस में हमजा शहबाज को आइंदा समाअत पर पेश करने का हुक्म दे दिया। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग और रमजान शुगर मिल्स केस की समाअत हुई। हमजा शहबाज को अदालत में पेश नहीं किया जा सका। जेल सुपरिटेंडेंट ने रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि हमजा शहबाज को गुज़िश्ता 2 रोज से बुखार की शिकायत है। हमजा शहबाज की मुख्तलिफ मेडिकल चेकअप और कोरोना का टेस्ट भी करवाया गया है। हमजा शहबाज को अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सका। सरकारी वकील ने कहा कि हमजा शहबाज की तबीयत दुरुस्त नहीं, 1 रोज बेड रेस्ट दिया गया है। खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नैब ने नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में साबिक वजीर आजम की अपील पर समाअत आज हो रही है। मजीद जानेंगे असलम खोकर से। असलम बताएगा। जी बिल्कुल, थोड़ी देर बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस की जो समाअत है वो शुरू हो जाएगी। तहम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं और नवाज शरीफ की जो कानूनी टीम है वो इस वक्त अदालत पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ नैब की जो कानूनी टीम है वो भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। आज अदालत ने 10 दिसंबर को नवाज शरीफ को आखिरी मौका दिया था कि वो जो मुतलका अथॉरिटी है उसके सामने सरेंडर करें, लेकिन नवाज शरीफ जो है वो अभी तक यहाँ पर पेश नहीं हुए। उसके बाद केस की जो प्रोसीडिंग होगी, उनकी कानूनी टीम जो है आज क्या दलाल देती है और क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है, उसके बाद अदालत जो है वो फैसला करेगी। ताहम इस हवाले से गुज़श्ता रोज हमने देखा कि नवाज शरीफ की जानिब से जो उनके वकील है ख्वाजा हारिस, उनकी जानिब से दरख्वास्त दायर की गई और जिसमें यह कहा गया कि नवाज शरीफ जो है वो उनका सरेंडर करना जो है मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो बीमार हैं और उनका जो है बैरून मुल्क इलाज चल रहा है। उनको उसमें जो उनकी मुख्तलिफ बीमारियां उनका जिक्र किया गया, जिनमें हाइपरटेंशन है और इसके साथ साथ अमराज क़ल्ब के अलावा दूसरी बीमारियों का भी तस्करा किया गया कि नवाज शरीफ को बीमारियां लायक, और इसके साथ साथ उनके जो डॉक्टर हैं डेविड, उनकी भी प्रिस्क्रिप्शन है वो भी दर्ज की गई और जो दवाइयां दी जा रही है वो भी वहां पे लिखी थी। इसके साथ हमने ये भी देखा कि उनके जो नून लीगी रहनुमा है उनकी जानिब से यह कहा गया है कि उन्होंने नवाज शरीफ को यह मशवरा दिया है कि जब तक वो बिल्कुल सेहतयाब नहीं होते तो यहाँ पर पेश ना हों। तब आज अदालत इस पर केस उनकी दलाल सुनेगी और उसके बाद ये फैसला कर सकती है कि नवाज शरीफ को जो है वो इश्तिहारी करार दिया जाए, जिसके बाद जो उनको इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई की जाएगी और फिर उनके जो इश्तिहारात हैं इश्तिहारी के नैब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और इसके अलावा जो उनकी रिहाइश गाह है और मुख्तलिफ जगहों पर लगा दिए जाएंगे, जिसके बाद उनको जो है वो मफरूर करार देकर अगली जो कार्रवाई शुरू होगी। ताहम अभी जो आज केस की समाअत होनी है, जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच जो है आज केस की समाअत करेगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि अभी थोड़ी देर पहले नैब ने एक दरख्वास्त दायर की जिसमें उन्होंने कहा कि एवन फील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की जो जमानत है उसको खारिज किया जाए, क्योंकि उनका यह कहना है कि जो उनके रहनुमा है जिन्होंने उनको मशवरा दिया है कि वो अदालत के सामने सरेंडर ना करें बल्कि वहीं पर इलाज करें, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। जिस दरख्वास्त में यह भी मौका इख्तियार किया कि नवाज शरीफ जो है वो जमानत का गलत फायदा उठा रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई करके उनकी जमानत जो मनसूख कर दी जाए। ताहम अभी केस की समाअत जो है वो थोड़ी देर बाद होनी है, उसके बाद अदालत क्या रिमार्क्स देती है और क्या फैसला देती है ये थोड़ी देर बाद पता चलेगा। जी सही, बहुत शुक्रिया असलम खोकर।
وزیر اعظم کے مشیران کی تعیناتی کے خلاف درخواستوں پر 4 مشیروں نے جوابات جمع کرا دیے۔ عبدالحفیظ شیخ نے جواب جمع کرانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ وزیر اعظم عمران خان کے مشیران کی تعیناتی کے خلاف درخواست کی ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی۔ 4 مشیروں نے اپنے جوابات عدالت میں جمع کروا دیے۔ عبدالحفیظ شیخ نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت مانگ لی۔ وزیر اعظم شہزاد اکبر اور وزارت قانون نے جواب جمع کروا دیے۔ وزیر اعظم نے جواب میں کہا کہ مشیر کا تقرر کرنا وزیر اعظم کا اختیار ہے۔ عدالت نے جواب جمع نہ کروانے پر دیگر کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی، نیب کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے۔ نیب کو تمام ہدایات حکومت دیتی ہے، حکومت بتاتی ہے کس پر کیس کرنا ہے، کسے پکڑنا ہے۔ انتقامی کارروائیاں اپوزیشن کا راستہ نہیں روک سکتی۔ میم اور شین لیگ کا کوئی وجود نہیں، مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں متحد ہے۔ یہ اپنے ضمیر کے قیدی ہیں، یہ بلیک میل ہو رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں۔ انہیں ہر چیز جو ہے، ہر انسٹرکشن جو ہے یہ اوپر سے آتی ہے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ کس کو نوٹس کرنا ہے، کس کو بلانا ہے، کس سے کیا سوال کرنا ہے اور کس کے کیس کو کس طرح سے جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پروسیڈ کرنا ہے۔ میں آج دعوے سے یہ کہتا ہوں کہ میرے خلاف پچھلے 2 سال سے صرف نیب نہیں، گورنمنٹ کی تمام ایجنسی جو ہیں انہوں نے جو ہے وہ ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے۔ آج تک وہ کوئی 1 روپے کا اکاؤنٹ جو میں نے اکاؤنٹ ڈکلیئر کیے ہیں ان کے علاوہ نہیں لا کے رکھ سکے کہ جی یہ آپ کا جو ہے وہ اکاؤنٹ ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید نے 30 دسمبر سے پہلے نون لیگ تقسیم ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ کہتے ہیں نواز شریف سیر سپاٹے کر رہے ہیں، واپس آنے کو تیار نہیں۔ مریم نواز کی ساری سیاست لندن جانے کے لیے ہے۔ اپوزیشن کی اے پی سی ٹائیں ٹائیں فش ہو گئی۔ یہ 30 دسمبر تک میں پہلے کہہ چکا ہوں ان کے برے حالات ہوں گے اپوزیشن کے، اور جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان کے برے حالات ہوں گے وہ سن رکھیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے برے حالات ہوں گے، اور مولانا صاحب صرف اور صرف جلسہ کریں گے۔ یہ ساری اے پی سی جلسے کرے گی، کوئی ایسا بڑا قدم نہیں اٹھائے گی جو پاکستان کی سیاست پہ حاوی ہو یا پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچا سکے۔ اب آپ کو جو اہم بات کرنا چاہتا ہوں کہ نون لیگ سے شہباز لیگ یعنی شین لیگ انشاءاللہ الگ ہوگی، وہ اپنا الگ گروپ بنائے گی اور 30 دسمبر سے پہلے ایسا ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف سندھ کے رہنما حلیم عادل شیخ نے کہا کہ اندرون سندھ بارشوں اور سیلاب کے بعد صورتحال انتہائی تکلیف دہ ہے، علاقوں میں وبائی امراض پھوٹ چکے ہیں۔ بارشوں نے نہیں ڈبویا، سیم نالوں کی بریچز نے، سیم نالے پلٹنے کی وجہ سے، سیم نالے ٹوٹنے کی وجہ سے اور قدرتی آبی گزرگاہوں پر وڈیروں کے، امیروں کے، جاگیرداروں کے، بااثر سیاستدانوں کے قبضوں کی وجہ سے جو آبی گزرگاہیں ہیں جسے ہم کہتے ہیں سندھ میں ڈھنڈ، ڈھورا، لنگ، ان پہ قبضے ہو چکے ہیں۔ کراچی میں گجر نالے کا قبضہ ہمیں نظر آ جاتا ہے، ہم پلان بھی کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ یہاں غریب لوگ ہیں ہٹا دیے جائیں گے، کیا کریں گے؟ لیکن ان ڈویژنز میں ان نالوں پہ، گزرگاہوں پہ، ندیوں پہ قبضے ہیں، مطلب ڈھورو پران نہر نالا جو ہے وہ 700 میٹر کا ہے اور نوکوٹ شہر میں 50 میٹر کا کر دیا گیا۔ کس نے کیا؟ خیرپور میں سیلاب متاثرین کی کشتی دریائے سندھ میں الٹنے سے 25 افراد ڈوب گئے۔ دریا سے 2 بچیوں کی لاشیں اور 12 افراد کو زندہ نکال لیا گیا، جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ خیرپور کے علاقے پیر گوٹ کے کچے کے رہائشی کشتی میں سوار ہو کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے تھے کہ کشتی دریا میں ڈوب گئی۔ کشتی میں 25 افراد سوار تھے، ڈوبنے والوں میں 12 خواتین اور 8 بچے شامل ہیں۔ اہل علاقہ نے اپنی مدد آپ کے تحت دریا سے 2 لاشیں اور 12 افراد کو زندہ نکالا، جبکہ دیگر کی تلاش جاری ہے۔ کراچی میں رینجر سے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کرتے ہوئے 10 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان سے اسلحہ، لوٹا گیا سامان اور منشیات برآمد ہوئی ہیں۔
कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स की कार्रवाइयां, 10 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कोरंगी और फिरोजाबाद से 6 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुलजिमान से असलहा, लूटा गया सामान और मुनशियात बरामद कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान डकैती, स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में मुलव्वस हैं। सादिकाबाद में 70 साल के बुजुर्ग की जानिब से जवामर्दी का मुजाहरा किया गया। मुसल्लह डाकुओं से लौटे हुए डकैती की वारदात को नाकाम बना दिया। सादिकाबाद में बढ़ती हुई चोरी की वारदातों से एक तरफ शहरी परेशान हैं तो वहीं संजरपुर के रहायशी 70 साल बुजुर्ग एहसानुल हक ने डकैती की नीयत से आए डाकुओं की दौड़ें लगवा दी। संजरपुर में वाकया सुपर स्टोर के मालिक एहसानुल हक ने दलेरी की मिसाल कायम कर दी। एहसानुल हक अपने स्टोर पर मौजूद थे कि अब एक असलहा बरदार को सुपर स्टोर में दाखिल हुआ और सबको यरगमाल बनाकर कैश काउंटर से कैश तलब किया, ताहम बुजुर्ग ने कैश देने से इनकार कर दिया। हाथापाई के दौरान डाकू पिस्टल निकालकर बाहर चला गया और जिसके दौरान सुपर स्टोर के मालिक ने अपनी पिस्टल उठाया और डाकुओं का ताकुब किया। जंगी जनून में मुब्तला भारत खित्ते का अमन तबाह करने पर तुल गया। एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, जिसमें 3 मासूम शहरी जख्मी हो गए। अमन का दुश्मन भारत जहरियत से बाज न आया। ISPR के मुताबिक भारतीय फोर्सेज ने बैडोरी सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग करके एक बार फिर सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। भारतीय फौज की जानिब से सिविल आबादी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 3 शहरी जख्मी हो गए। पाक फौज की जानिब से दुश्मन की जारियत पर मौसर अंदाज में जवाब दिया गया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज भारतीय फौज की बैडोरी सेक्टर पर फायरिंग से पाक फौज का जवान लियाकत शहीद हुआ था। 39 साल हवालदार लियाकत का ताल्लुक चकवाल से है। दूसरी जानिब पाक फौज ने LOC की खिलाफ वर्दी पर एक और भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। क्वाडकॉप्टर चकोटी सेक्टर में 500 मीटर तक पाकिस्तानी इलाके में घुस आया था। भारतीय फौज का रवां साल गिराया जाने वाला ये 11वां क्वाडकॉप्टर है। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान के नायब वजीर आजम एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। उज़्बेक नायब वजीर आजम दौरे के दौरान वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात करेंगे। मजीद जानेंगे चीफ रिपोर्टर ऑन शेराजी से। जी ऑन। जी मानूर, बिल्कुल उज़्बेकिस्तान के नायब वजीर आजम जो उज़्बेकिस्तान के वजीर दिफा भी हैं, वो एक रोजा दौरे पे अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान पहुंच गए हैं। उनका दौरा इंतहाई अहम ख्याल किया जा रहा है। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन जो तिजारत है उससे मुख्तलिफ मुआहदे हैं जो वो फाइनल करेंगे। इस हवाले से उनकी एक खसूसी मुलाकात वज़ीर आज़म इमरान खान से होगी, जबकि वज़ीर आज़म के जो मुशीर हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद, उनसे भी उनकी मुलाकात होगी और अब्दुल रज़ाक दाऊद के साथ मुलाकात में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन तिजारत की और लेन देन का जो तरीक़ेकार है वो तय किया जाएगा। उसके अलावा पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के माबैन तिजारत में इजाफे पर भी बात होगी। जी सही, बहुत शुक्रिया ऑन शेराजी। शहर इक़्तिदार में कोरोना सूरत हाल, कोरोना के केसेस में फिर से इजाफा होने लगा। गुज़श्ता 24 घंटों में 24 नए केसेस सामने आए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 2000 से जायद केसेस के हवाले से आपको बता रहे हैं कि गुज़श्ता 24 घंटों में 2476 तशखीसी टेस्ट किए गए हैं। अब तक इस्लामाबाद से 15,804 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। फाल केसेस की तादाद कम होकर 383 रह गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में कोई नई अमवात रिकॉर्ड नहीं हुई है। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद की शाहराह कचरा कुंडी के मनाजिर पेश करने लगी। सड़क पर मौजूद कचरे के बायस इलाके में ताफुन फैल रहा है। मजीद जाने की अता हुसैन से। जी अता। जी बिल्कुल, कराची के शहरी एक मसाइल से निकलते नहीं तो दूसरे मसाइल में घिर जाते हैं। हालिया होने वाली बारिशों के बाद अब भी शहर के मुतादिद इलाकों में बारिश का पानी, सेवेज का गंदा पानी और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में मौजूद हूँ, असगर अली शाह स्टेडियम के बिल्कुल बाहर। अगर मैं कैमरामैन असगर यहाँ पे आपको दिखाए कि नॉर्थ नाज़िमाबाद
कि ये सड़क है और इसके साथ ही असगर अली शाह स्टेडियम भी है। ये सड़क कचरे के अंबार से भरी हुई है, कचरे का पहाड़ बना हुआ है यहाँ पे। ये इस सड़क के ऊपर कचरा पड़ा होने से जो है ये सड़क जो है आधी से ज़ायद जो है ये सड़क बंद हो चुकी है। लोग जो है वन वे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ट्रैफिक के हादसे का सबब भी बनता है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती है। यहाँ के मकीनों से जब हमारी बात हुई, यहाँ के रहायशों से जब हमारी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि हुकूमती नुमाइंदे जो है वोट मांगने के लिए तो आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद 5 साल तक जो है वो मंजर आम से गायब हो जाते हैं, जिसके बायस हमें अपनी मुश्किलात को हल करने के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। जी सही, बहुत शुक्रिया अता हुसैन। लाहौर की मुतादिद सड़कें टूट फूट का शिकार हैं, लेकिन ना तो पंजाब हुकूमत की जानिब से पेच वर्क किया गया और ना ही सड़कों की तामीरें नो। सड़कों की अब तक हालत जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। अली मलिक से जानेंगे। अली मलिक, बताइएगा कि शहरी किन मुश्किलात से दो चार हैं? जी बिल्कुल, शहर लाहौर की सड़कों की बात की जाए तो सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। हालात ये हैं कि मेन रोड के बीचों बीच बड़े से बड़े जो हैं वो गड्ढे बनाए हुए हैं। अभी तक जो है वो इंतज़ामिया की जानिब से कोई इंतजामात देखने को नहीं मिल रहे। यहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुल्तान रोड, जो पूरी की पूरी जो है वो ऑरेंज लाइन ट्रेन के साए में आई हुई है, मगर इसका पुरसाने हाल कोई नहीं है। यहाँ पे हर थोड़े फासले के बाद जो है वो यहाँ पे गड्ढे बने हुए हैं। मैं इस वक्त आपको एक शायरी से लेके गुफ्तगू करते हैं, शायरी से जानते हैं। बताइएगा ये गड्ढे कब से बने हुए हैं और क्या मुश्किलात का सामना? जी, जब से ये ट्रेन बन रही है, ये 4-5 साल से ये खड्डे बने हुए हैं और तोड़ा हुआ है, और रात को खड्डे नजर भी नहीं आते और कई एक्सीडेंट होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो कि मतलब कि बेगुनाह जो है मारे जाते हैं इसके दौरान। और जब बारिश होती है तो ये पानी भर जाता है इनके अंदर, और फिर जैसी बाइक या कोई गाड़ी लगती है तो संभाल नहीं सकते तो गिर जाते हैं वो, मतलब कि एक्सीडेंट हो जाता है। जी बिल्कुल, ऐसे गड्ढे जो है वो मुल्तान रोड पूरी पे मौजूद हैं, जिसको जो है वो बड़े से बड़े पत्थर रख के वहाँ पे एक निशानदेही की गई है, मगर इसको अब तक जो है वो इंतजामिया की जानिब से ठीक नहीं किया गया। और यहाँ पे जो है वो लाइट का भी इंतजाम नहीं है। रात के वक्त जो है वो यहाँ पे कई ऐसे जो है वो वाकयात सामने आए हैं हादसात के, जिसके बाद जो है वो जानी नुकसान का भी सामना। बहुत शुक्रिया अली मलिक, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच।